welcome back to my channel. My name is Ratika Gupta and guys, topic for today is Section 11 of the Hindu Marriage Act 1955, which deals with void marriages. Guys, so far I've covered videos on section number 1 to section number 10. So if you have not watched my previous videos yet, please go and watch those videos first. So guys, before we move on, if you're new to my channel and if you have not subscribed it yet, please subscribe to my channel right now. And yes, if you enjoy learning with me, you understand what I teach, please like all my videos and do let me know in the comment section below. So guys, beginning with section 11 of the Hindu Marriage Act, which deals with void marriages. Guys, in order to understand this concept of void marriages, it is very important for you to understand what section number 5 and 7 of the Hindu Marriage Act says. So अगर आपको section number 5 यानी कि conditions for a Hindu marriage to be a valid one and section number 7 ceremonies of a valid Hindu marriage, अगर आपको नहीं पता, प्लीज इस वीडियो को देखने से पहले गो एंड वॉच माय वीडियोस ऑन सेक्शन नंबर 5 एंड 7, तभी आपको आज की वीडियो बहुत इजीली समझ आने वाली है. सो गाइज, अब यहाँ पे आप देखो कि अगर आप बैर एक्ट ओपन करोगे, आपको सेक्शन नंबर 11 के ऊपर एक हेडिंग देखने को मिलेगी, नलिटी ऑफ मैरिजेस. अब गाइज, मैरिजेस का क्या कॉन्सेप्ट होता है, इट हैज बीन डिस्कस्ड लॉन्ग बैक. मैंने बहुत देर पहले हिंदू मैरिजेस की एक अलग से वीडियो बनाई थी, वहां पे हमने इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था. अब गाइज, नलिटी इज येट अनदर वर्ड व्हिच माइट नॉट बी न्यू टू यू, बिकॉज गाइज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बहुत बार हमने नल एंड वॉइड इस वर्ड को सुना है. So any marriage which is null and void means in fact no marriage at all. Nullity का मतलब है जो चीज null and void होती है, और जो चीज null and void होती है उसका मतलब है कि it is not enforceable in the court of law, it is not recognized by law. यानी कि जो चीज legally enforceable नहीं होगी वो unenforceable होगी, और उसको हम कहेंगे कि it is not recognized by the court of law, hence null and void. It means अगर आप marriages के साथ ये word को attach करते हो nullity, it means वो marriages which are null and void, वो marriages which are not recognized by the court of law because they are unenforceable in the court of law. तो उन्हीं कुछ marriages को हम discuss करेंगे. So nullity of marriages के concept के अंदर हम section number 11 and 12 को discuss करेंगे. So in this today's video we are going to discuss section number 11 which deals with void marriages, and in my upcoming video guys we'll be discussing section number 12 which deals with voidable marriages. So ये दो तरीके के marriages होंगे जिसको हम nullity of marriage के concept में discuss करेंगे. Guys, I've told you in my previous video on section number 5 कि a marriage which is not valid will either be void or voidable. तो या फिर वो void होगी या voidable होगी, right? अब वो void कब होगी या voidable कब होगी, वो हमने section number 5 में discuss किया था. Any Hindu marriage which is solemnized in contravention or in violation of section number 5 clause 1, 4 and 5 is void. वो marriage क्या होगी, void होगी. And any marriage which is solemnized in contravention of section number 5 clause 2 will be voidable. So इसीलिए मैंने आपको कहा कि जिन लोगों ने मेरी वीडियो देखी है on section number 5, और else for those people who are already well aware of what section 5 says, उनको पता होगा कि मैंने क्या बोला है. So before you watch this video, please go and watch that video. तो आपको easily समझ आएगा. अब guys, मैंने आपको बता दिया कि nullity of marriage का क्या concept होता है. इसमें शादियां वैलिड नहीं होती हैं, तो इसमें हम दो तरीकों की शादियों को रीड करते हैं, void and voidable. So इस पर्टिकुलर वीडियो में हम void marriages को डिस्कस करेंगे. अब गाइज, ये जो कॉन्सेप्ट है ना ऑफ नलिटी ऑफ मैरिज, इट हैड बीन ट्रांसप्लांटेड टू इंडियन लॉ फ्रॉम इंग्लिश लॉ. सो इंग्लिश लॉ में एक कॉन्सेप्ट हुआ करता था नलिटी ऑफ मैरिजेस का, वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे आया, एंड टुडे वी आर रीडिंग इट, सेक्शन नंबर 11 void marriages and section number 12 on voidable marriages which I am going to discuss in my upcoming video. अब guys, कोई भी शादी void marriage कब होगी, when definitely there are certain impediments to it. I've told you कि जो marriage valid नहीं है वो वैलिड क्यों नहीं है, बिकॉज देर आर सर्टन रीजन्स टू इट. सो देर आर सर्टन इम्पेडिमेंट्स, कुछ रुकावटें होती हैं, कुछ ऑब्स्टिकल्स होती हैं, कुछ ऑब्स्ट्रक्शंस होती है, दिस अ काइंड ऑफ हिंड्रेंस टू दोज मैरिजेस, इसीलिए वो वैलिड नहीं होती हैं. तो या फिर वो वॉइड होंगी या वो वॉइडेबल होंगी. अब गाइज, वो हिंड्रेंसेस, वो इम्पेडिमेंट्स क्या हैं, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ. ये इम्पेडिमेंट्स दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं एब्सोल्यूट इम्पेडिमेंट्स और एक होते हैं रिलेटिव इम्पेडिमेंट्स. गाइज, एब्सोल्यूट इम्पेडिमेंट्स मीन्स 100% इम्पेडिमेंट्स, दे रेंडर अ मैरिज, अ हिंदू मैरिज वॉइड. वो एक हिंदू मैरिज को वॉइड कर देते हैं. इट मीन्स हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे कि वो जो एब्सोल्यूट इम्पेडिमेंट्स हैं वो क्या हैं. वैसे आपको पता है कि सेक्शन नंबर 5 clause 1, 4, 5 along with section number 7 they are absolute impediments to a marriage and hence they render a marriage void. उसी तरीके से गाइस relative impediments होते हैं, they render a Hindu marriage voidable which we are not going to discuss today. आज बात हम उसके बारे में नहीं करेंगे. अब गाइस, आपको समझ आ चुका है कि nullity of marriage का क्या कॉन्सेप्ट होता है.
कहाँ से ये हमारे लॉज में इंट्रोड्यूस हुआ, इंडिया में कहाँ से आया, और आपकी इम्पेडिमेंट्स क्या है, मतलब व्हाट इज दैट थिंग विच रेंडर्स अ मैरिज वॉइड। ऐसा कुछ तो होगा ना कि एक मैरिज वैलिड नहीं है तो वो क्या है, वॉइड है। और वो वॉइड क्यों है वो मैं आपको बता चुकी हूँ कि देयर आर सर्टेन इम्पेडिमेंट्स टू इट, और वो इम्पेडिमेंट्स एब्सोल्यूट इम्पेडिमेंट्स होते हैं। एंड व्हाट आर दोज इम्पेडिमेंट्स वो आपको पता है अगर आपने सेक्शन 5 की वीडियो को देखा है। सो गाइस, बिगिनिंग विद द कॉन्सेप्ट ऑफ वॉइड मैरिजेस, बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है, कुछ कॉन्सेप्ट नहीं। अब आप यहाँ पे देखो गाइस, अगर आपको ध्यान हो, इफ यू हैव वॉच्ड द वीडियोज ऑन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, हमने एक वीडियो करी थी वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स पे। मैंने आपको बताया था कि void is something which is unenforceable, वो अभी भी मैंने आपको बता दिया कि something which is not enforceable in the court of law is void, वो चीज़ null and void होती है। तो एक साइड हम बोलते हैं कि वो void है और दूसरी साइड हम उसको बोलते हैं कि वो contract है। If you remember, contract क्या होता है? An agreement enforceable by the court of law is a contract. It means void is unenforceable, contract is enforceable। तो ये दोनों चीज़ें, don't you think they are self contradictory, एक दूसरे को contradict करती हैं, void contract। उसी तरीके से गाइज we have a concept called void marriages, and if you remember, you know, the modern or the contemporary viewpoint of Hindu marriages, हमने डिस्कस किया था कि हिंदू मैरिज, you know, in today's time is a semblance of both a contract and sacrament। दोनों चीजें होती है, कॉन्ट्रैक्ट भी है वो, sacrament भी है। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट है तो इसको आप कह सकते हो void contract। अब void contract से वही कहानी है कि it is enforceable and unenforceable। दोनों चीजें हो गई ना कि void is something which is unenforceable, मैरिज इज अ कॉन्ट्रैक्ट एंड हेंस एनफोर्सिएबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। तो ये दोनों चीजें सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी हो गई। इट मीन्स गाइस, इसीलिए कहा जाता है कि वॉइड मैरिजेस, इट इज अ मिसनॉमर, इट इज इन फैक्ट नो मैरिज एट ऑल। एक शादी वॉइड है मीन्स वो अनएनफोर्सिएबल है, तो इट मीन्स वो कोई शादी नहीं है, लॉ के नजरिए में वो कोई शादी नहीं है। अगर वो लॉ के नजरिए में शादी नहीं है तो it means it is in fact no marriage at all. It is void ab initio, right from its beginning, right from its inception, वो कोई शादी नहीं थी। तो अगर हम इसको कहते, we only use it, हम ये बोल देते हैं कि it is a void marriage, लेकिन in fact it is a misnomer, it is in fact no marriage at all, because these two terms are self contradictory। तो अगर हम नहीं भी कहेंगे तो भी चलेगा, yet एक वर्ड निकल के आता है void marriages। मैरिजेस के साथ ये वर्ड को इसलिए अटैच कर दिया गया है क्योंकि, और एल्स आप कह सकते हैं कि void के साथ मैरिजेस को इसलिए अटैच कर दिया गया है क्योंकि गाइज, पार्टीज दे अंडरगो रिक्विजिट राइट्स एंड सेरेमनीज ऑफ अ मैरिज, इसलिए हम इसको मैरिज बोल देते हैं। इट मीन्स गाइज, फॉर एग्जाम्पल, पार्टीज दे हैव नो कैपेसिटी टू मैरी। अब कैपेसिटी टू मैरी नहीं है, इट माइट बी फॉर एनी रीजन, कोई भी एब्सोल्यूट इम्पेडिमेंट हो सकता है, वो बाइगेमस मैरिज हो सकती है। तो अगर आप एक शादी होते हुए, एक वैलिड मैरिज होते हुए दूसरी शादी करोगे, इट मीन्स लॉ के नजरिए में यू हैव नो कैपेसिटी टू रीमैरी। या फिर आप स्पिंडाज हो या प्रोहिबिटेड डिग्रीज में आते हो, इट मीन्स यू हैव नो कैपेसिटी टू मैरी। स्टिल अगर आप सेक्शन 7 के तहत सेरेमनीज ऑफ अ वैलिड मैरिज परफॉर्म कर लेते हो, अगर आप सप्तपदी करके अपने ही किसी स्पिंडा से शादी करते हो, सो इज इट अ वैलिड मैरिज? नो, वो मैरिज नहीं है। स्टिल अगर वो वैलिड नहीं है तो वो क्या है? वॉइड है। तो इट मीन्स वो वॉइड मैरिज होगी विच इज इन फैक्ट नो मैरिज एट ऑल। बट उसको मैरिज क्यों कहा गया? क्योंकि फॉर द सेक, क्योंकि रिक्विजिट राइट्स एंड सेरेमनीज हैड बीन परफॉर्म्ड। यू नो, जो सेरेमनीज थी, जो रीति रिवाज थे, जो रिचुअल्स थी, जो फॉर्मेलिटीज थी, जस्ट बिकॉज उनको कर दिया गया डिस्पाइट द फैक्ट दैट पार्टीज दे हैव नो कैपेसिटी टू मैरी, सिर्फ इसीलिए इसको बोल देते कि इट इज अ वॉइड मैरिज। इट इज इन फैक्ट नो वर्ड एट ऑल, इट इज इन फैक्ट नो मैरिज एट ऑल, इट इज वॉइड ab initio, void right from its beginning, right from its inception, and it is not recognized in the court of law। अब गाइस, जो शादी void होगी उससे कोई भी लीगल कॉन्सिक्वेंसेस फ्लो नहीं करेंगे। इट मीन्स, कहने का मतलब है कि अगर कोई शादी वैलिड नहीं है, इट डज नॉट कॉन्फर द स्टेटस ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ ऑन टू द पार्टीज ऑफ मैरिज। अगर वो हस्बैंड एंड वाइफ नहीं है तो उनके जो कॉन्जुगल राइट्स एंड रिलेशनशिप राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस होंगी वो भी नहीं आएगा। इट मीन्स वो जो कॉन्जुगल रिलेशनशिप है, यानी कि वो जो कोहैबिटेशन है, अगर वो नहीं भी करेंगे, इफ दे डू नॉट लिव टुगेदर एज हस्बैंड एंड वाइफ, तो कोई उनको क्वेश्चन नहीं कर सकता, बिकॉज दे आर इन फैक्ट नो हस्बैंड एंड वाइफ। पार्टीज, दे आर नो हस्बैंड एंड वाइफ टू ईच अदर। इट मीन्स जो भी एक वैलिड मैरिज के लीगल कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, जैसे कि कॉन्फरेंस ऑफ अ स्टेटस ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ ऑन टू द पार्टीज ऑफ मैरिज, और ऑफ लेजिटिमेसी टू द चिल्ड्रन, और फुलफिलिंग योर मैरिटल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस। सो जो ये लीगल कॉन्सिक्वेंसेज फ्लो करते हैं फ्रॉम अ वैलिड मैरिज, वो एक वॉइड मैरिज में नहीं होंगे।
एंड इवन इफ ईदर ऑफ द टू पार्टीज वो इसको नहीं भी पूरा करेगी, nobody can go to the court of law because it is in fact no marriage at all. तो अगर हम कहें कि void marriage is a misnomer, it is a self contradictory, it is void ab initio, it is in fact no marriage at all because it is not recognized by the court of law. तो इसका मतलब क्या है कि कोर्ट इसको रिकॉग्नाइज नहीं करता, ये अनएनफोर्सिएबल है, कोई इंसान अपनी void marriage को कोर्ट में जाके इन्फोर्स नहीं करवा सकता है. If for example if two people they are spindas to each other or they fall within the degrees of prohibited relationship, अगर वो कोर्ट में जाते हैं एंड हस्बैंड बोलता है कि so and so is my wife, she is not performing her conjugal rights and obligations, तो कोर्ट उसको उसकी उस इंसान की वो जो पिटिशन उसने फाइल करी है उसको एनफोर्स नहीं करेगा. कोर्ट विल से दैट इट इज अ void marriage, it is in fact no marriage at all. Since you are no husband and wife, so जब तक मैरिज नहीं होगी तब तक आपके conjugal rights and obligations can never come into existence. वो कभी begin, वो कभी start भी नहीं होंगे. तो अगर आप ये कहो कि वो अपनी conjugal rights and obligations को पूरा नहीं कर रहा, वो गलत है. बिकॉज अगर आपको याद हो, हमने सेक्शन नंबर 9 रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स में भी डिस्कस किया था कि रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स इट प्रीसपोजेस अ वैलिड मैरिज. इवन हमने सेक्शन 10 जुडिशियल सेपरेशन में भी डिस्कस किया कि इट प्रीसपोजेस अ वैलिड मैरिज. यही रीजन है कि वो वैलिड मैरिज को प्रीसपोज करते हैं. कोर्ट मान के चलता है कि शादियों की वैलिड मैरिजेस हो रखी हैं, क्योंकि अगर वो वैलिड नहीं होंगी तो वो वॉइड होंगी, और अगर वो वॉइड हैं तो दे आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय द कोर्ट ऑफ लॉ. इट इज नॉट इन्फोर्सिएबल. कोर्ट उस बारे में कुछ नहीं कर सकता. मोरोवर गाइज, अगर एक इंसान रीमैरिज भी करता है, ठीक है, तो इट इज इन फैक्ट फर्स्ट मैरिज इन द आईज ऑफ लॉ, तो नो पर्सन विल बी हेल्ड गिल्टी ऑफ बाइगेमी ऑल्सो. सो आई होप आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो चुके हैं, क्योंकि इफ यू हैव मैरिड योर स्पिंडा, कोर्ट के नज़रिए में वो कोई शादी नहीं है. तो अगर एक बॉय फिर से शादी कर लेगा, उसके लिए शायद से वो सेकेंड मैरिज हो, लेकिन लॉ के नज़रिए में एज पर द प्रोविजंस ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट वो फर्स्ट मैरिज है, एंड ईदर ऑफ द टू पार्टीज विल नॉट बी हेल्ड गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस ऑफ बाइगेमी. नो बाइगेमी इज कमिटेड बिकॉज इट इज इन फैक्ट योर फर्स्ट मैरिज. वो आपकी पहली मैरिज है विच इज रिकॉग्नाइज्ड as a valid marriage by the Hindu Marriage Act 1955. I hope things are quite clear to you. Now guys, if I talk about decree nullifying और invalidating a marriage. अब आपको पता है गाइज, हमने बहुत बार बात करी डिक्री ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, डिक्री ऑफ जुडिशियल सेपरेशन. डिक्री की बात हम बहुत देर से करते आ रहे हैं. सो गाइज, होता क्या है कि जो मैरिज एक वॉइड मैरिज होती है ना, वहाँ पे कोर्ट की डिक्री की जरूरत नहीं होती है, वो असेंशियल या मैंडेटरी नहीं होती है. इट्स अ पॉइंट टू बी नोटेड दैट डिक्री ऑफ द कोर्ट नलिफाइंग अ मैरिज और इनवैलिडेटिंग अ वॉइड मैरिज इज नॉट ऑब्लिगेटरी, इट इज नॉट नेसेसरी, इट इज नॉट असेंशियल. क्योंकि गाइज सबको पता है कि वो एक मैरिज इनफैक्ट मैरिज नहीं है, लॉ उसको रिकॉग्नाइज नहीं करता. इवन विदाउट ऑब्टेनिंग अ डिक्री ऑफ नलिटी ऑफ अ वॉइड मैरिज, अगर एक इंसान दूसरी शादी करता है, ही विल नॉट बी हेल्ड गिल्टी ऑफ बाइगेमी. आप ये नहीं बोल सकते कि पहले आपको कोर्ट से डिक्री लेनी है विच विल नलिफाई योर मैरिज, उसके बाद आप सेकेंड मैरिज कर सकते हो. ये जो है वो वो वैलिड मैरिजेस की सिचुएशन होती है, यहाँ पे जरूरत नहीं होती है, बिकॉज एवरीबडी नोज इट इज इट्स अ प्री एग्जिस्टिंग फैक्ट. ये एक प्री एग्जिस्टिंग फैक्ट है जो सबको पता है कि वो एक वैलिड मैरिज नहीं है, इट इज अ वॉइड मैरिज. इसीलिए कोर्ट की डिक्री की जरूरत नहीं होती है. लेकिन फिर भी गाइस होता क्या है कि पीपल दे वांट कि एक बार हम क्या कर लें, डिक्री कोर्ट की ऑब्टेन कर लेते हैं नलिफाइंग दिस मैरिज सो एज टू अवॉइड एनी क्योस, एनी कंफ्यूजन और एनी हरासमेंट इन नियर फ्यूचर. What happens is guys that a decree of court nullifying a void marriage or invalidating a void marriage is otherwise not obligatory. वो ज़रूरी नहीं होती है. अगर आप डिक्री फिर भी अगर कोर्ट देता है, यानी कि अगर पार्टीज चाहती हैं कोर्ट की डिक्री को ऑब्टेन करना, इट इज मेरली अ जुडिशियल डिक्लेरेशन ऑफ अ प्री एग्जिस्टिंग फैक्ट. गाइस, इट्स अ पॉइंट टू बी नोटेड, इट इज नथिंग मोर दैन इट इज मेरली अ जुडिशियल डिक्लेरेशन ऑफ अ प्री एग्जिस्टिंग फैक्ट. हमें पहले से पता है कि वो कोई शादी नहीं है. अगर कोर्ट डिक्री पास करेगी भी तो कोर्ट की डिक्री का ये इफेक्ट नहीं होगा कि वो शादी नल एंड वॉइड हो गई. उसका इफेक्ट सिर्फ इतना होगा कि उसने प्री एग्जिस्टिंग फैक्ट को क्लियर कर दिया, जुडिशियली उसको डिक्लेयर कर दिया, सो एज टू अवॉइड एनी क्योस इन फ्यूचर. सो अ डिक्री nullifying or invalidating a void marriage does not render that marriage void. उसको void नहीं करती है, it is already void. उस डिक्री की ये पार नहीं होती कि उसने शादी को void किया है. ये voidable marriages में होता है कि आपने उस शादी को डिक्री लेके null and void कर दिया. लेकिन जो शादी already void है, उसका अगर उस void marriage पे कोर्ट की डिक्री आएगी तो उसका ये इम्पैक्ट नहीं होगा कि it renders it null and void, which is in fact already null and void.
इट इज़ मेरली अ जुडिशियल डिक्लेरेशन ऑफ अ प्री एग्जिस्टिंग फैक्ट। और ये भी क्यों होता है वो मैं आपको बता चुकी हूँ, सो दैट पार्टीज आर क्वाइट सर्टन अबाउट देयर लीगल पोजीशन। उन्हें पता हो कि क्या वो लॉ के नजरिए में मैरिड है या अनमैरिड है, सो दैट पार्टीज दे बिकम क्वाइट क्लियर ऑफ देयर लीगल पोजीशन, क्वाइट सर्टन ऑफ देयर लीगल पोजीशन, सो एज टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन, एनी क्योस और हरासमेंट इन नियर फ्यूचर। तो पार्टीज चाहती हैं कि कोर्ट की एक बार डिक्री आ जाए विच इनवैलिडेट्स, विच मेरली प्रूव्स जुडिशियल डिक्लेरेशन ऑफ अ प्री एग्जिस्टिंग fact that yes, this marriage is void marriage. It means parties, they are no husband and wife and either is free to remarry and they will not be held guilty of an offense of bigamy. Moreover guys, what happens is कि जब कोर्ट ये डिक्री पास करता है ना invalidating a void marriage, कोर्ट के पास एक पावर होती है to grant ancillary relief. Ancillary reliefs क्या होती है? Related to maintenance. तो ancillary relief होती है to either party, be it to husband or wife, ये कुछ maintenance होती है, ठीक है। मेंटेनेंस क्या है? स्पाउजल मेंटेनेंस हो सकती है, हस्बैंड या वाइफ के मेंटेनेंस हो सकती है, एनी सेटलमेंट रिलेटेड टू देयर प्रॉपर्टीज और मेंटेनेंस ऑफ देयर चिल्ड्रन, देयर एजुकेशन। सो वो जो है ना, अगर ये डिक्री पास होती है तो इसीलिए पार्टीज चाहती हैं कि कोर्ट एक डिक्री पास कर दे, ऑल्दो अगर नहीं भी पास होगी इट इज नॉट ऑब्लिगेटरी बिकॉज इट इज ऑलरेडी नोन कि वो शादी वॉइड है। बट अगर कोर्ट की जजमेंट, कोर्ट की डिक्री आ जाती है, सो इट बिकम्स अ जजमेंट इन रेम। जजमेंट इन रेम का मतलब होता है इट इज अ जजमेंट फॉर द होल वर्ल्ड आउट देयर कि इट इज नो मैरिज एट ऑल एंड दे आर नो हस्बैंड एंड वाइफ, ऑल्दो दे वर नॉट हस्बैंड एंड वाइफ, लेकिन इट्स अ जजमेंट इन रेम एंड पार्टीज दे बिकम क्वाइट क्लियर ऑफ देयर लीगल पोजीशन। तो सिर्फ इतना होता है। और एक और बात है कि पार्टीज को क्या मिल जाती है? एंसिलरी रिलीफ मिल जाती है। इसीलिए पार्टीज चाहती हैं कि हम एक बार कोर्ट से जो है वो डिक्री ऑब्टेन कर लेते हैं, नलिफाइंग देयर ऑलरेडी वॉइड मैरिज। सो गाइज, नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट इज दैट कि ये जो पिटिशन है ना फॉर ऑब्टेनिंग अ डिक्री ऑफ नलिटी ऑफ अ वॉइड मैरिज, वो पिटिशन सिर्फ और सिर्फ ईदर पार्टी टू अ मैरिज ही फाइल कर सकता है, ठीक है। इट मीन्स हस्बैंड वाइफ के अगेंस्ट या वाइफ हस्बैंड के अगेंस्ट ही वो पिटिशन को फाइल कर सकती है। ईदर ऑफ देम, अगर कोई भी चाहता है टू ऑब्टेन द डिग्री ऑफ नलिटी ऑफ मैरिज ऑफ देयर वॉइड मैरिज, अगर वो चाहते हैं तो वो ईदर पार्टी कैन डू दैट। इट मीन्स जो थर्ड पार्टी होगी, थर्ड पार्टी हैज नो लोकस स्टैंडर्ड टू फाइल दैट पिटिशन। अब गाइस होता क्या है, देखो ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है बाइगेमस मैरिजेस में। सपोज गाइज एक मैरिज बाइगेमस मैरिज है, कोई भी मैरिज बाइगेमस कब होगी? मैंने आपको बहुत पहले बताया सेक्शन नंबर 5 में कि फर्स्ट एंड सेकंड बोथ दीज मैरिजेस हैव गॉट टू बी वैलिड अंडर द प्रोविजंस ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट, तभी हम उसको बाइगेमस मैरिज कहेंगे। बाइगेमस मतलब सेकंड मैरिज, तो वो दोनों मैरिजेस अगर वैलिड होंगी तभी वो बाइगेमस होगी। इफ ईदर ऑफ देम इज वॉइड, तो वो एक ही शादी है। मैंने आपको अभी तो बताया कि वॉइड मैरिज इज इन फैक्ट नो मैरिज एट ऑल। तो जब वो कोई मैरिज ही नहीं होगी, लॉ उसको रिकॉग्नाइज ही नहीं करता, तो आप एक इंसान को बाइगेमस मैरिज के लिए कॉन्विक्ट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ बॉय, उसने एक हिंदू गर्ल से शादी करी, इट वॉज अ वैलिड इनफ मैरिज, कोई इंपेडिमेंट्स नहीं थे, कोई भी एब्सोल्यूट इंपेडिमेंट्स नहीं थे जो एक शादी को वॉइड कर सकते थे। उसके बाद ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ हिज और हर स्पाउस, दिस पर्सन गॉट रीमैरिड, उसने येट अनदर हिंदू गर्ल से फिर से शादी कर ली, वो भी शादी वैलिड इनफ मैरिज थी। इट मीन्स कोई एब्सोल्यूट इंपेडिमेंट्स नहीं थे और वो भी शादी उसकी वैलिड मैरिज थी। नाउ दिस बॉय विल बी कॉन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस ऑफ बाइगमी। बट द थिंग इज गाइज कि जो मैंने आपको बताया कि ईदर पार्टी टू अ मैरिज मे फाइल अ पिटिशन फॉर obtaining a decree of nullity of marriage. It means guys, दो husband and wife, एक husband and wife के बीच में जो third person है, it's a bigamous marriage, एक boy की शादी इधर भी है और इधर भी है, तो ये जो है ना यहाँ पे for example these two people have got married। अब जो उसकी first wife थी guys, वो अगर चाहती भी है ना कोर्ट में तो वो नहीं जा सकती, बिकॉज हिंदू मैरिज एक्ट में गाइस कोई भी ऐसा प्रोविजन नहीं है जहां पे थर्ड पार्टी कैन हैव अ लोकस स्टैंडाई टू फाइल अ पिटिशन टू ऑब्टेन अ डिक्री ऑफ नलिटी ऑफ मैरिज। थर्ड पार्टी नहीं कर सकती। देन दैट लेडी जो उसकी फर्स्ट वाइफ थी उसको तो प्रॉब्लम होगी, बट दैट वाइफ हैज नो अदर रेमेडी दैन टू गो फॉर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर एंड स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में एंड कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में कुछ हमारे पास प्रोविजंस हैं, वो उसको हेल्प करेंगे टू ऑब्टेन अ डिक्लेरेटरी सूट और इंजंक्शंस, तो उनको वहां पे मिलेंगे। लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट के तहत वो जो आपकी फर्स्ट मैरिज की वाइफ होगी वो आपके खिलाफ पिटिशन फाइल नहीं कर सकती। सो अ पिटिशन for obtaining a decree of nullity of a void marriage can only be filed by either of the two parties to a marriage and third person has no locus standi to do that। और अगर थर्ड पर्सन करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल इन बाइगेमस मैरिजेस में प्रॉब्लम आती है, तो बाइगेमस मैरिज में अगर वो फर्स्ट वाइफ ऑब्टेन करना चाहती है कोर्ट की हेल्प से कि मेरे हस्बैंड को रोको फ्रॉम हैविंग अ सेकंड वाइफ बिकॉज आई एम स्टिल अलाइव, तो दैट गर्ल
can go under the provisions of other statutes, but the Hindu Marriage Act 1955 has no such provisions. So guys, I hope these points are quite clear to you. हमने सबसे पहले देखा कि nullity of marriage क्या होती है, कहाँ से ये concept आया, and क्यों एक शादी valid नहीं होती है, because there are certain impediments to it. और वो impediments एब्सोल्यूट भी होते हैं और वो कुछ रिलेटिव भी होते हैं. इट मीन्स परमानेंट एंड टेम्पररी इंपेडिमेंट्स, ये चीज़ हो जाती है. और उसके बाद हमने वॉइड मैरिजेस के कॉन्सेप्ट को देखा. वी डिस्कस्ड अबाउट डिग्री ऑफ नलिटी ऑफ मैरिज. अब गाइज अगर मैं बात करूँ ग्राउंड्स की, तो वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि सेक्शन 5 क्लॉज 1, क्लॉज 4 एंड 5 अलॉन्ग विथ सेक्शन नंबर 7, अगर इनकी रिक्वायरमेंट्स कॉन्ट्रवीन होती हैं या वायलेट होती हैं तो वो शादी आपकी वॉइड रहेगी. इट मीन्स अगर आपने बाइगमी करी एट द टाइम ऑफ मैरिज, अगर आपको पता है कि यू हैव अ स्पाउस लिविंग डिस्पाइट दैट फैक्ट यू हैव गॉट रीमैरिड, तो वहाँ पे यू विल बी कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस ऑफ बाइगमी और आपकी जो दूसरी शादी होगी वो क्या होगी, आपकी वॉइड होगी. राइट. प्रोवाइडेड योर फर्स्ट मैरिज इज अ वैलिड मैरिज. ये आपको पॉइंट क्लियर हो चुका है सेक्शन नंबर 5 में. उसके बाद सेक्शन नंबर 5 सब क्लॉज 4 एंड 5 डील्स विद डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप एंड स्पिंडा रिलेशनशिप. वहां पे भी क्या था कि अनलेस योर कस्टम परमिट्स अ मैरिज बिटवीन दीज टू पीपल, तो आप कर सकते हो, अदरवाइज ये मैरिजेस क्या होंगी, वॉइड होंगी. एंड सेक्शन नंबर 7 इज वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि सेरेमनीज ऑफ अ हिंदू मैरिज. गाइस अगर आप सेरेमनीज को परफॉर्म नहीं करोगे, चाहे आप कस्टमरी सेरेमनीज कर लो अंडर सेक्शन 7 क्लॉज 1, या आप शास्त्रिक राइट्स एंड सेरेमनीज को परफॉर्म कर लो अंडर सेक्शन नंबर 7 क्लॉज 2, बट ईदर ऑफ द टू इज इंपॉर्टेंट. इनमें से कोई एक सेरेमनी को परफॉर्म करना जरूरी है. या तो आप शास्त्रिक राइट्स एंड सेरेमनीज में सप्तपदी परफॉर्म करो, या आप कस्टमरी राइट्स एंड सेरेमनीज को परफॉर्म करो. कस्टमरी क्या होती हैं, उनके क्या इंपॉर्टेंस है, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं सेक्शन नंबर 7 में, तो इनको भी इंपॉर्टेंट है. अगर कोई भी शादी होगी इन कॉन्ट्रवेंशन ऑफ सेक्शन नंबर 7, वो भी मैरिज क्या होगी, वॉइड होगी. बिकॉज सेरेमनीज ये परफॉर्म नहीं हुई तो वहाँ पे इट इज़ नो मैरिज एट ऑल, वो क्या होगी, वॉइड मैरिज होगी. मोरोवर गाइस, ये जो पॉइंट अभी मैं डिस्कस करूंगी बहुत ही शॉर्ट पॉइंट है, वो कोई ग्राउंड नहीं है फॉर अवॉइड मैरिज, बट वो एक बेसिक सी बात है कि अगर कोई हिंदू नॉन हिंदू से शादी करता है तो अंडरस्टूड सी बात है, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, राइट फ्रॉम द इंट्रोडक्टरी क्लास हम डिस्कस करते आ रहे हैं कि अगर दोज टू पीपल, फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ पर्सन हु इज अ हिंदू, other person is a Christian or a Muslim, यानी कि नॉन हिंदू है. If these two people want to get married, they cannot marry under the provisions of the Hindu Marriage Act. They have got to marry under the provisions of Special Marriage Act 1954. Obviously, if this, for example, Hindu boy and a Muslim girl, if this girl does not want to give up her faith in Islam और इन क्रिश्चियनिटी व्हाटसोएवर इज हिज और हर रिलीजन, अगर वो अपने फेथ को गिव अप नहीं करके कन्वर्ट नहीं करना चाहते तो आपको स्पेशल मैरिज एक्ट के प्रोविजंस में शादी करनी है. लेकिन अगर आप अपने ही रिलीजन को कन्वर्ट कर लेते हो, इस्लाम से आप या क्रिश्चियनिटी से या फिर किसी भी रिलीजन से अगर आप हिंदू रिलीजन में कन्वर्ट हो जाते हो, देन ऑब्वियसली यू हैव बिकम अ हिंदू एंड आपकी पर्सनल एप्लीकेबिलिटी एज पर सेक्शन 2 आपके पास पर्सनल एप्लीकेबिलिटी है हिंदू मैरिज एक्ट की, फिर आप हिंदू मैरिज एक्ट के प्रोविजंस के अंदर शादी कर सकते हो. लेकिन इफ अ हिंदू एंड नॉन हिंदू वांट्स टू गेट marry, they cannot solemnize a marriage under the Hindu Marriage Act. और अगर वो solemnize कर भी लेंगे तो वो एक valid marriage नहीं होगी, वो क्या होगी, void marriage होगी. So I hope guys concept of void marriage is quite clear to you. So I'll be coming up with my video on voidable marriages also. Till then guys, stay tuned, keep learning, keep shining, stay safe and bye bye.